Hello my dear students, welcome to all of you in VR Mathematics Academy. Myself Dr. Vivek Rohira, Mathematics Mentor. In the previous lectures हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था 1-1 फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन, और दूसरा टाइप हमने स्टडी किया था पार्ट 2 में, दैट इज ऑन टू फंक्शन. ओके, और 1-1 ऑन टू के साथ हमने स्टडी किया था मैनी-वन एंड इनटू फंक्शन आल्सो. नाउ in this lecture, in the types of function part 3, we are now going to study about the bijective mapping or 1-1 onto function. So let me start. 1-1 onto function or bijective mapping. Bijective mapping. This topic we start today in the part 3. So what is bijective mapping और 1-1 onto function? तो देखिए, कोई भी फंक्शन है f is from a to b. This function is called 1-1 and onto when number 1 this f is 1-1 function. ये f क्या हो? 1-1 function हो. और we can say this f is injective mapping. f क्या हो? इंजेक्टिव मैपिंग हो. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? fx is equal to fy implies that x should be equal to y for all. Okay, so this is the mathematical expression to prove the 1-1 function. So a function f a to b is said to be bijective mapping which when it follow the first condition, that is f is 1-1 function, and second one is f is onto function, or we can say surjective mapping. So when a function is 1-1 and onto, or we can say injective and surjective, then it is called bijective mapping. Onto function को mathematically कैसे लिखेंगे? For all y belongs to b, there exists x belongs to a in the domain such that fx should be equal to y. This is the mathematical definition of onto. So here we firstly understand कि bijective mapping होता क्या है, या 1-1 onto mapping किसे कहते हैं हम. Okay, so this is we understand. Now by the arrow diagram also we understand very clearly this bijective mapping. तो यहाँ पर एक arrow diagram हम draw करते हैं. Okay, so in this arrow diagram let this is domain and codomain. यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 एंड हियर वी विल टेक एन एलिमेंट ए बी सी डी. देखिए, 1 images A, let 2 images C, 3 images B and 4 images D. तो हमने यहाँ पर देखा जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन के, हर किसी की एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में. ओके, और जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, हर किसी की एक प्री इमेज एग्जिस्ट है इन दी डोमेन. बट यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी कब एक साथ यहाँ पर आएंगी? दे बोथ possible when in domain and codomain number of element should be same. जब दोनों में number of element same होंगे तभी हम 1-1 and onto they both we can define very easily. तो यहाँ पर एक important condition आ गई. क्या important condition हमने conclude करी? When number of element in domain should be equal to number of element in codomain, then we can say it is the bijective mapping, or we can define bijective mapping. Okay, when both domain and codomain having the same number of element. So this is we understand about the bijective mapping. Now we are taking some example कि हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे bijective mapping को प्रूव करने के लिए. राइट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, शो दैट f is from q to q, fx is equal to 2x minus 3 is bijective mapping. हमें fx is equal to 2x minus 3 को bijective mapping प्रूव करना है, या फिर इसको 1-1 onto प्रूव करना है. तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या रहेगा. जब हम इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो नंबर 1 हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ पर 1-1 फंक्शन. 1-1 फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे? fx is equal to fy implies that x is equal to y. तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 2 एलिमेंट्स ले लेंगे फ्रॉम द डोमेन. This is q from the domain
and then fx1 is equal to fx2. fx1 किसके इक्वल लेंगे? fx2 के इक्वल लेंगे. fx1 that is 2x1 minus 3, and what is the meaning of fx2? The meaning of fx2 is 2x2 minus 3. Minus 3 and minus 3 they both will cancel out. Then इसके बाद क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट? 2x1 is equal to 2x2. 2 and 2 they both also cancel out. Then we conclude that x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के, for all. So when we conclude x1 is equal to x2 for all by the help of fx1 is equal to fx2, तो on 1 फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई. दैट इज f तो हमने 1 प्रूव कर दिया. नाउ वी हैव टू प्रूव ऑन टू क्या आ जाएगा? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b. यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q. व्हाट इज q? q इज द कोडोमेन. सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q कोडोमेन there exists x belongs to q domain, x belongs to q domain such that fx is equal to y, or we can say is equal to 2x minus 3. अब हम क्या करेंगे? इसको फाइनली वेरीफाई करने के लिए x को y के फॉर्म में लिख देंगे. तो x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? y plus 3/2 which belongs to q for all y belongs to q. तो जो कि किस में बिलोंग कर रहा है? q में बिलोंग कर रहा है. किसके लिए? for all y belongs to q के लिए. तो बहुत ही इजीली ऑन टू भी प्रूव कर दिया, 1 भी प्रूव कर दिया. जैसे ही ये फंक्शन 1 ऑन टू हो गया, देन f इज बाइजेक्टिव मैपिंग. वी शो दैट f क्या है? बाइजेक्टिव मैपिंग है. ओके, सो दिस इज वी शो दैट इज, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे शो दैट अ गिवन फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग, तो हम किस टाइप से शो करेंगे? दिस इज वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बाय दिस एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए. वन मोर एग्जांपल वी टेक टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, that is how we prove or show that the f is bijective mapping. The second example, इस second example में हमें given है f is from r to r, fx is equal to 3x cube plus 5. इसको हमें 1 on to प्रूव करना है. ठीक है, जब इसको 1 on to प्रूव करना है तो फर्स्ट 1 प्रूव करने के लिए सेम यहाँ पर हम कंसेप्ट लेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन का. ओके, तो सेम कंसेप्ट लेंगे. तो हमने यहाँ पर x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन. आप चाहें तो x1 x2 के प्लेस पे x और y भी ले सकते हैं, बट कभी कभी उसमें कंफ्यूजन हो जाता है x और y लेने में कि x और y ले रहे हैं तो यहाँ पर y कोडोमेन को डिनोट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि हम यहाँ पर क्या ले लें? x1 एंड x2. सो नाउ fx1 is equal to fx2. Now fx1 is equal to fx2, that is 3x1 cube plus 5 will be equal to 3x2 cube plus 5. 5 and 5 they both will cancel out. Now the final term is 3x1 cube is equal to 3x2 cube. So 3 and 3 they both will cancel out. और इसके थ्रू हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है? x1 cube is equal to x2 cube. x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब से आप एक काम और कर सकते हैं कि आपने x2 क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तब भी आपके पास जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल. ओके, सो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर. दैट इज वी प्रूव दैट f इज 1 फंक्शन. एंड फाइनली ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है. देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन there exists x belongs to R domain such that fx is equal to y is equal to 3x cube plus 5. Okay, now we have to write down x in the form of y. तो 3x cube तो आप as it is रहने दें, इधर आ जाएगा आपके पास y minus 5. Now x cube will be equal to y minus 5 upon 3, or we can say x will be equal to y minus 5 upon 3 raised to the power 1/3 which belongs to R. आप y की कोई सी भी वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में से ले लें, मतलब डोमेन की कोई भी वैल्यू आप सेट ऑफ रियल नंबर में से ले लें, आपके पास x कहाँ बिलोंग करेगा?
x belongs to R. So that's why we easily prove that f is onto function. And finally we write down f is 1 1 onto function. F is 1 1 onto function. So by this example we also understand कि हम बाइजेक्टिव मैपिंग या 1 1 onto function को कैसे प्रूव करेंगे. अब इस एग्जाम्पल का सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जब भी आपको कोई फंक्शन एफ आर टू आर गिवन है, देखिए यहां से हम कंक्लूजन क्या फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी which conclusion we can find out by this example. Very important conclusion we are going to find out here, right? So let's see the example we are taking. f is from r to r और fx आपके पास given है in the form of a x raised to the power n plus b के फॉर्म में. ओके, f is from r to r और fx आपके पास किस फॉर्मेट में गिवन है, a x raised to the power n plus b के फॉर्मेट में. यहां पर when n is odd, n क्या हो, odd, n odd होगा then this is bijective mapping. Then we can conclude that this is bijective mapping. And when n is even then this is not a bijective mapping. This is, you can directly find the main concept from these type of question. That is f is from r to r, fx is given in the form of a x raised to the power n plus b. एक किस तरह के पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है, where n belongs to set of natural number. So in that case when n is odd then this is bijective mapping, and when n is even then this is not a bijective mapping. This is we conclude. Now in the same way this type of the next type of question I just want to discuss with you कि ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स. दिस इज f इज फ्रॉम a टू b और यहाँ पर a और b हमें क्या गिवन है, दे बोथ आर इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, वेयर x इज बिटवीन 1 to -1 एंड fx किस फॉर्मेट में गिवन है आपको, x इंटू मॉड x के फॉर्मेट में गिवन है. आप जब मॉड x की डेफिनेशन यहाँ पर ओपन करोगे देन fx को आप स्प्लिट कर सकते हो, x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, राइट. और x की रेंज आपको क्या गिवन है, फ्रॉम -1 to 1. नाउ व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ, when we plot this graph then we can easily found x greater than equal to 0. ओके, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा पैराबोला का, एंड माइनस एक्स स्क्वायर देन दिस इज फॉर माइनस एक्स स्क्वायर एंड हियर दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, this is -1 and this is -1. So by graphical approach what we can do, in the graphical approach you will easily found that हम horizontal line draw करेंगे इस particular डोमेन और कोडोमेन में. जो मैं पर्टिकुलर कोडोमेन और डोमेन दे रखा है इसमें आप कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये ग्राफ को क्या कर रहा है, ओनली एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है. जब ये ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, सो व्हाट वी कंक्लूड दैट एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज द यूनिक इमेज इन द डोमेन. और दूसरा हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जितनी भी हमने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रही हैं, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ करते हैं वो किसको डिनोट करती हैं, द वैल्यूज ऑफ वाई. और आप देख रहे हैं हर किसी वाई की वैल्यू पे, हर किसी या फिर हम बोले हर किसी कोडोमेन की वैल्यू पे एक प्री इमेज उसका एग्जिस्ट करता है. सो बाय दिस ग्राफिकल अप्रोच व्हेन वी आर ड्रॉइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इन पर्टिकुलर दैट डोमेन एंड कोडोमेन, बेसिकली हम कोडोमेन के रेस्पेक्ट में हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट. एंड व्हेन दिस कट द ग्राफ एट लीस्ट वन पॉइंट, तो ये क्या हो जाता है ऑन टू फंक्शन, और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को किसी गिवन फंक्शन के ग्राफ को ओनली एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली एट वन पॉइंट, देन वी से दैट दिस इज वन फंक्शन. तो यहाँ पर तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट इज दिस इज वन ऑन टू फंक्शन, और वी कैन से दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग. सो दिस फंक्शन इज अ bijective mapping, right.
सो वी अंडरस्टैंड बाय ऑल दीज एग्जांपल्स की बाइजेक्टिव मैपिंग को कैसे प्रूव करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज कि यार कोई भी फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव मैपिंग कब नहीं होगा, राइट? व्हेन वी से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव मैपिंग. तो यहाँ पर देखिए एक कंक्लूजन हम और फाइंड आउट कर रहे हैं. व्हेन दिस इज नॉट 1-1 और बाइजेक्टिव मैपिंग, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ नॉट अ बाइजेक्टिव मैपिंग और नॉट 1-1 onto function. So f is from a to b. फर्स्ट कंडीशन ये बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं हो. कब नहीं होगा? व्हेन f is not 1-1. कोई भी फंक्शन या तो 1-1 नहीं हो तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं होगा. सेकेंड, व्हेन f is not onto function, या ये onto फंक्शन नहीं हो तब भी ये बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं होगा या बाइजेक्टिव मैपिंग फेल हो जाएगी. एंड द थर्ड वन इज when f is neither 1-1, when f is neither 1-1 nor onto function. न तो f यहाँ पर 1-1 फंक्शन हो, न ही यहाँ पर f क्या हो, onto फंक्शन हो, then we can say this is not a bijective mapping. So here we also conclude that when we can say f is not a bijective mapping, when f is not 1-1, or we can say f is not onto or f is neither 1-1 nor onto, then we conclude that f is not a 1-1 onto mapping or a bijective mapping. So I think in this lecture, my dear students, you understand very clearly कि bijective mapping क्या होता है. तो in the types of function, this was the last topic कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होता है या 1-1 onto फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं या उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट या थ्योरी या उसका कंसेप्ट क्या होता है, राइट? So I think you understand very clearly the bijective mapping in this lecture. Thanks to all of you, my dear students.